Welcome to Integral Mind students. Today we are going to discuss a few questions of previous year JW Mains on calculus. Okay. So this is the first question. So what the question says is that a curve is represented parametrically by, and this is an equation given, x is equal to t plus e to the power at, and this is another equation given, y is equal to minus t plus e to the power at. Why it is called as parametrical? Because x and y are represented in terms of another parameter which is t. Okay, the curve touches the x-axis at, you have to find. So let us try to understand first what it tells is that this is the plane. So we have a curve. Okay, so we do not know anything right now. First of all, the equation of the curve is given parametrically, x in terms of t and y in terms of t. So let us just draw a random curve in this way. Let us think that this is the curve. Okay, so it tells us that whatever the curve may be, the curve touches the x-axis. That means touches matlab is this is the thing. Okay, so it is touching the x-axis at some point. Okay, so you have to find that point. So how to do that? Okay, so while you see such videos, of previous year questions or any educator who is teaching you something, so do not just try to understand the solution. What you try to do is that you try to see his approach, see the approach of the educator, what approach he is applying to get to those solutions, because you are not going to get repeated questions, but those approaches will help you. Once you understand a few approaches of an educator, what he applies, so the similar approaches, if you can understand the way he is approaching towards the solution, you can approach any other unknown question given in the exam hall. Okay. So let us try to understand that. First of all, okay, so if we try to understand this point, the curve touches the x-axis at a given point. Okay, now what will be the coordinate of that point? What will be the structure of the coordinate of that point? So at this point you will have some value of x definitely, but the value of y will be 0, right? So that's why if you see in the answer, all the options are in this format only. Y is 0, right? First of all, this is the thing you need to understand. The second thing is that at this point, if you see, the x-axis is acting like a tangent at this point. Huh? It is touching a particular point and then it is going just by touching. What is a tangent? A tangent is such a line which touches your curve at a single point. ऐसा नहीं है कि एक कर्व अगर है उसको अगर दो जगह पे अगर कट कर रहा है, so this is not a tangent, है ना, बट उसको अगर एक पॉइंट पे कहीं एक पॉइंट पे छू के अगर वो निकल जा रहा है तो उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं. तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है ना, एक पॉइंट को छू के निकल रहा है, ठीक है. और इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे ना, इस पॉइंट पे हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, दैट इज द टेंजेंट, है ना. तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ वो 0 एंगल बना रहा है ना. इट इज नॉट मेकिंग एनी एंगल, बिकॉज इफ यू सी दिस इज द टेंजेंट और एक्स एक्सिस खुद ही टेंजेंट है, तो वो खुद के साथ एंगल कितना बनाएगा? इट इज 0 एंगल, राइट. So if it is 0, that means your slope is 0 at this point. At this point your slope is 0. If your slope is 0, slope मतलब क्या होता है? dy by dx is 0. It is a very key finding. dy by dx is equal to 0. ठीक. तो अभी इस चीज को हमें अप्लाई करना है. क्या करेंगे अभी? पहले तो लिखते हैं दोनों को. x is equal to t plus e to the power at. ये है, ठीक है. तो फिलहाल तो x t के टर्म्स में है, तो उसको t के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं. dx by dt is equal to ddt of t plus e to the power 80. इसको खोल देंगे तो t plus ddt of e to the power 80. Okay, so this is your 1 plus ये चेन रूल अगर लगेगा तो, है ना, e to the power 80 और a आ जाएगा. तो हम लोग जब डिफरेंशिएशन हम लोग जब करेंगे तब ये सब समझ सकते हैं. व्हेन वी स्टडी डिफरेंशिएशन सेपरेटली, ओके, दिस इज जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग. तो ये चेन रूल के तहत ये बाहर आ जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली योर इक्वेशन बिकम्स 1 प्लस a e to the power 80. तो ये बेसिकली बन गया dx by dt, ठीक है. अभी dy by dt निकाल लेते हैं. जो दिया हुआ है सिंपल उसको एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है. तो y को तो x के साथ तो अभी फिलहाल तो हम लोग नहीं डिफरेंशिएट कर सकते क्योंकि y इज इन टर्म्स ऑफ t. अगर y x के टर्म पे अगर होता तो हम लोग डायरेक्टली dy by dx हम लोग निकाल सकते. फिलहाल t के टर्म्स में है तो dy by dt, सिमिलरली dx by dt, ठीक है. तो इसको भी कर लेते हैं ddt ऑफ माइनस टी प्लस ई टू द पावर 80. तो ये भी सिमिलरली, मैं और फुल सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको भी हम लोग सिमिलरली क्या लिखेंगे, -1 प्लस ए ई टू द पावर 80 एंड दैट इज योर dy by dt. ये dy by dt निकल गया, ये dx by dt निकल गया. नाउ कैन यू सी हियर स्टूडेंट्स कि इससे हम लोग dx by dt हम लोग निकाल सकते हैं ना. dx नहीं, सॉरी, हमको क्या चाहिए, dy by dx चाहिए ना, उसको इक्वेट करना है 0 के साथ.
हम लोग कर सकते हैं। देखो डी वाई बाई डी टी हमारा गिवन है, डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी अगर कर देते हैं हम लोग कर सकते हैं ना, ये इक्वेशन बाई इक्वेशन कर देते हैं, ठीक है। 1 प्लस ए ई टू द पावर ए टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए ई टू द पावर ए टी, ठीक है। तो डी टी कट जाएगा, क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस ए ई टू द पावर ए टी बाई 1 प्लस ए ई टू द पावर ए टी, ये मिल गया, ठीक है। अभी व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स, इट इज जीरो ड्यू टू दिस पॉइंट, है ना, तो ये जीरो हो गया। तो देखो अगर डी वाई बाई डी एक्स को अगर जीरो अगर होना है तो यू हैव न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का कोई खेल नहीं है इसमें। अगर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर को अगर जीरो होना है तो किस चीज को जीरो होना पड़ेगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता, न्यूमरेटर को ही जीरो होना पड़ेगा, है ना। दैट मीन्स आई गेट दिस इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे फिलहाल, ओके, दैट माइनस 1 प्लस ए ई टू द पावर ए टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ए ई टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 1 मुझे मिल गया। अभी ई टू द पावर ए टी का वैल्यू 1 बाई ए आ गया, इसको कहीं पे लिख के रखते हैं, ठीक है, इसको कहीं पे लिख के रखता है। चलो अभी एक चीज करते हैं, ये जो y का जो पॉइंट है ना इस पे कुछ पुट करते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ई टू द पावर ए टी, राइट। अभी इस पॉइंट पे स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे y इज जीरो, सो y इज जीरो माइनस टी प्लस ई टू द पावर ए टी का वैल्यू क्या मिला है इस पॉइंट पे, है ना। दिस इज नॉट ए जनरलाइज्ड वैल्यू दैट वी आर पुटिंग हियर, आई मीन द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू टेक फॉर t, so I mean e to the power 80 is the generalized for only this case, okay. So e to the power 80 का वैल्यू क्या मिला 1 by a, that means t का वैल्यू मिल गया 1 by a, okay. फिर से एक और वैल्यू मिला, t का वैल्यू मिल गया 1 by a, ठीक है। अभी फिर से t को इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, तो t का वैल्यू अगर 1 by a अगर पुट करेंगे, a कट जाएगा, तो e का वैल्यू हमें मिल गया 1 by a। तो देखो हमें काफी चीजों का वैल्यूज मिल गया है। अभी हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट पे अंडर ऑल दिस कंडीशंस, है ना, इसी कंडीशन पे e टू द पावर 80 का वैल्यू 1 by a मिला, इसी कंडीशन पे t का वैल्यू 1 by a मिला, और इसी कंडीशन पे e का वैल्यू 1 by a मिला, ठीक है ना। तो उसी कंडीशन पे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमें चाहिए। y तो जीरो है, x का वैल्यू हमको चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t प्लस ई टू द पावर 80। तो t का वैल्यू हमें मिला है 1 by a प्लस ई टू द पावर ओके, तो e का वैल्यू भी हमें मिला है 1 by a पावर 80 क्या है, a इंटू टी का वैल्यू भी है 1 by a, तो ये कट जाएगा। तो बेसिकली x का वैल्यू हमें क्या मिला है 2 by a। तो देखो x का वैल्यू हमें मिला है 2 by a, राइट, दिस इज द वैल्यू आई एम टॉकिंग अबाउट। x का वैल्यू मिला है 2 by a एंड व्हाट इज a 1 by e। तो a के जगह पे हम लोग अगर 1 by e अगर पुट करेंगे तो बेसिकली इट इज 2e। x का वैल्यू हमें मिला है 2e, ठीक है ना। तो दिस इज द आंसर, x का वैल्यू 2e मिला है और y 0 मिला है। x का वैल्यू 2e अंडर ऑल दिस कंडीशंस, dy by dx के कंडीशन पे हमको e टू द पावर 80 का वैल्यू 1 by a मिला, उसी कंडीशन पे t मिला, उसी कंडीशन पे e मिला, e का वैल्यू मिला, और उसी कंडीशन पे ये तीनों को हम लोग मिला के x पे जब पुट करेंगे अंडर दिस कंडीशन वेयर x का कुछ वैल्यू है और y का 0 है, वहां पे हमें x का वैल्यू 2e मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये जेई मेंस प्रीवियस ईयर में आया था, ठीक है। तो इसी तरह इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो आ जाते हैं हमारे आज के दूसरे जेडब्ल्यू मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज इज दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, इस ए के बारे में बात करें, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन 0 to pi by 2, 0 to pi by 2, ठीक है। 0 to pi by 2 क्यों है, हम लोग एंगल्स के तौर पे बात करें क्योंकि इक्वेशन पे साइन है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो, सिंपल, ठीक है। तो अभी जैसे एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर से अगर समझ में ना आए एक गो पे गिव इट अनदर गो, ठीक है। तो अभी देखो अच्छे से स्लोली हम लोग वर्ड बाय वर्ड इसको समझते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए मतलब ए का एक मिनिमम वैल्यू के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब ए के मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे करके समझते हैं। ए के मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, उसमें से हम लोग उसका जो मिनिमम वैल्यू जो आने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर विच द इक्वेशन, दिस इज एन इक्वेशन, राइट, हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन दिस, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, उसका एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिले इस रेंज पे। इसको आते हैं अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। चलो देखो, तो अभी फिर से ये तो नॉर्मल साइन का कर्व तो नहीं है ना, ये कुछ एक कॉम्प्लेक्स साइन का इक्वेशन है, ठीक है। इज इक्वल टू ए मतलब इस तरफ में एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने पे बेसिकली ए का कुछ वैल्यूज मिल रहा है। देखो सिंपली ऐसे समझो, दिस इज एन इक्वेशन, राइट। उसका अभी हमें ग्राफ तो नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ ऐसा कुछ ग्राफ है, जस्ट सिंपल है, ठीक है, ज्यादा
दिमाग नहीं लगाना, इतना जस्ट सोच लो कि कोई कर्व है तो उसको ऐसा हम लोगों ने एक रैंडमली ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने पे बेसिकली एंगल्स है ना, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा मे बी हियर यू हैव 0, हियर यू हैव पाई बाई 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे पाई है मे बी, चलो तो यहां से एंगल बेसिकली एक्स का वैल्यू एंगल्स होंगे, है ना। उसको जब इक्वेशन में हम लोग जब पुट करेंगे तो दिस साइन विल गिव अस सम रिजल्ट। ओवरऑल ये इक्वेशन हमें कुछ एक रिजल्ट देने वाला है, विच इज द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। हम लोग वही बोल रहे हैं कि एक्स को हम लोग जब 0 से पाई बाई 2 के बीच में जब डालेंगे तो वहां पे मे बी यू कैन गेट मल्टीपल इन दिस रेंज, है ना। हम लोग अभी इन दिस रेंज अभी फोकस करते हैं खाली, ठीक है। तो मे बी इन दिस रेंज योर ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो इन दिस रेंज 0 टू पाई बाई 2 यू माइट गेट मल्टीपल वैल्यूज ऑफ ए, है ना। एक इक्वेशन है, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स है तो इसमें आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, अलग अलग ए के वैल्यूज आपको मिलते जाएंगे। आपने लेट्स से आपने 0 पुट किया तो आपको यहाँ पे 0 पुट करने पे कुछ एक वैल्यू आया, पाई बाई 4 आपने पुट किया तो उस पर आपको कुछ एक वैल्यू मिला, पाई बाई 2 पे कुछ एक वैल्यू मिला। तो इस तरह से 0 से पाई बाई 2 के बीच में जितना भी एंगल्स है, यू नो, जितने भी एक्स के वैल्यूज हैं हम लोग सब डालेंगे और देखेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू जिस पे आता है ना, वही हमारा ए का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। एटलीस्ट वन सोल्यूशन, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, जहां पे कि हमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन मिले। ऐसा हो सकता है कि ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, ठीक है, उस पर हमको 2 भी सोल्यूशन मिल सकता है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वन सोल्यूशन, 1 या मोर देन 1। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, तो चीज को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे कि इसको हम लोग y पकड़ लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 बाई साइन एक्स प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हमें एक इक्वेशन देने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और उसको सॉल्व करने पे है ना, एक्स के अलग अलग वैल्यूज पे y के अलग अलग वैल्यूज हमें मिलने वाले हैं। अब उसमें से कोई कोई एक्स होंगे जो कि हमें y का मिनिमम वैल्यूज देगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा ए का। ऑब्वियसली व्हेन योर एक्स विल लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 एज स्टेटेड हियर, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम लोग सिंपल एक तरीका लगाएंगे। अगर y इक्वल टू सम x के टर्म्स पे, बेसिकली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म पे अगर एक फंक्शन हमें अगर दिया रहेगा तो लेट अस से इसको और जूम करते हैं, मे बी ये 0 है और ये मे बी पाई बाई 2 है। तो उसको हम लोग जब प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग जब प्लॉट करेंगे और उसका अगर हम लोग मिनिमा निकाल ले ऑन दिस रेंज 0 से पाई बाई 2 के बीच में, अगर हम लोग मिनिमा अगर निकाले या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर हम लोग निकाले, अब जितना भी पॉइंट ऑफ मिनिमा मिले, 1 मिले 2 मिले, वो सारे पॉइंट ऑफ मिनिमा में जो भी वैल्यूज होंगे y के, इन ऑल दोस पॉइंट ऑफ मिनिमा व्हाटएवर y वैल्यू यू गेट, दोस आर योर a वैल्यूज, राइट, बिकॉज़ आई हैव रिप्लेस्ड y विद a एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मिनिमा, राइट। डू यू एग्री विद दिस? इफ नॉट पॉज करो, रिवाइंड करो और फिर से एक बार सुनो इसको, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम लोग एक बार पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर आई टेक पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि देखो इस पे पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स चाहिए होगा और इस इक्वेशन पे एफ डैश एक्स ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट अस टेक योर साइन एक्स एस टी, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एस टी, ठीक है, पकड़ लेते हैं, ठीक है। बट एक कंडीशन है, देखो हम लोग जैसे ही टी इक्वल टू साइन एक्स हम लोग लेंगे ना, तो हमको यहां देखना है कि साइन का वैल्यू विल वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। मतलब हम लोग जब साइन 0 जब पुट करेंगे तो टी का वैल्यू मिलेगा 0, हम लोग जब साइन पाई बाई 2 जब पुट करेंगे तो हमें टी का वैल्यू मिलेगा 1। मतलब व्हेन योर साइन इनपुट यू नो डोमेन विल लाई फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, आपका टी का डोमेन भी लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है। इट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। ये बाद में हमें काम आएगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको देखते हैं। ये सब ना बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है जेईई मेंस के, ठीक है, बहुत ही दिमाग को यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो अभी यहाँ हम लोग देखते हैं, चलो इसको कर देते हैं 4 बाई टी प्लस 1 बाई 1 माइनस टी। नाउ इट्स ए क्वाइट सिंपलर फॉर्म, अभी इसको अच्छे से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो अभी डी वाई बाई डी टी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी करने पे 4 इंटू 1 बाई टी का क्या होता है, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, राइट, प्लस 1 बाई इनी फॉर्म का क्या होता है, वट एवर इट इज, माइनस 1 माइनस टी, इसका स्क्वायर आ जाएगा और फिर से अंदर वाले का जब डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस 1 निकलेगा, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक। आई एम एज्यूमिंग योर डिफरेंशिएशंस आर क्वाइट ओके, तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। तो अभी योर डी वाई बाई डी टी वैल्यू इज माइनस 4 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 माइनस टी होल स्क्वायर, ठीक, इतना मान लेता है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा का बात अगर हम लोग करेंगे तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी 0 हो जाएगा, है ना। एट पॉइंट ऑफ मिनिमा your dy by dt will become 0, तो dy by dt 0 बन जाएगा। That means minus 4 by t square plus 1 by 1 minus t whole square will become 0। उस तरफ लेके चलते हैं, 1 by 1 minus t whole square is equal to 4 by t square। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, t square is equal to
अभी मैं डायरेक्ट खोल रहा हूँ, ठीक है। तो 4 आ जाएगा बिकॉज पहले 1 रहेगा, माइनस यहाँ पे क्या रहेगा अंदर पे 2t रहेगा इंटू 2, सो इट्स 8t, ओके, प्लस टी स्क्वायर। फाइन, अभी या तो या फोर टी स्क्वायर, सॉरी दिस 4t स्क्वायर, ओके। तो अभी इधर अगर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 आता है, 12 को 8 में तोड़ना है, 6 और 2, ठीक है। तो 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 3t कॉमन ले लेंगे, t माइनस 2 t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो t माइनस 2 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी मैंने जो कहा था ना ये चीज बाद में आएगा, अभी इसका टाइम आ गया। तो देखो इसको फिर लाते हैं, तो t का क्या क्या वैल्यूज आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक 2/3 आ रहा है, ठीक है। नाउ से क्या 2 हो सकता है, मैंने पहले ही बोला कि जब मैंने sin x इक्वल टू टी जब मैंने लिया था ना, उसी टाइम पे मैंने बोला था कि अगर sin x अगर जीरो मतलब x अगर 0 से मतलब π/2 के बीच अगर लाई करता है तो देन t विल आल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 1, सो 2 इज नॉट पॉसिबल। ये हमारा जो रेंज दिया हुआ है ना उसके बाहर है, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो बचा 2/3। तो लाइक 2/3 पे हम लोग वैल्यू निकाल के देख सकते हैं अभी y का कितना आ रहा है। सो y इज इक्वल टू 4 इट इज 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा 12, तो 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 1/1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 इज 1, 1/3 मतलब 3 हो जाएगा, सो इज 9, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ मिनिमा आई एम गेटिंग द वैल्यू, तो हमें पॉइंट ऑफ मिनिमा एक ही मिल रहा है, तो एटलीस्ट वन सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो आई एम गेटिंग ओनली वन पॉइंट ऑफ मिनिमा और उस पे वैल्यू है मेरा 9। सो अगर उस पॉइंट ऑफ मिनिमा पे अगर y का अगर वैल्यू अगर निकाले तो अगर वो 9 आ रहा है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट a, तो a का वैल्यू हमें 9 आ गया, ओके। आई थिंक इट इज क्लियर।